Agnivir wala matter. Lordship. What's the criteria? The criteria is, Lordship, the candidate should contain at least 45% marks. Is that advertisement? कौन सा subject लिखा है आपने? Lordship इसमें 45% in aggregate of 5 basic subjects. Basic What are the 5 basic subject है Lordship, 5 subject है. Let me अरे complete. एक बताने दो ना. These subjects are the compulsory subjects as per the guideline of the Tenth board में तो CBSE. मैम 10th बोर्ड में तो subjects are even common in all these schools. मतलब तो इसमें आपको ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए? इसके कंपलसरी में अगर हम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके एन प्लस 2 लैंग्वेजेस एनी ऑफ. ये कहाँ लिखा आपने? ये चीज बताइए ना. अग्निवीर जनरल में आपने लिखा है 45% इन एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट्स. मतलब अग्निवीर डन बाय द आर्मी है ना. तो यू विल हैव टू गो थ्रू द आर्मी रूल्स. क्या है? these are the compulsory subject which is to be taken. तो कहाँ है बताइए ना. कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट है बताइए. And 45 मैं आप जो पूछ रहा हूँ या तो फिर तुम लिखवा लो यहाँ के. Lordship, sorry. the candidate What was the matter? लॉर्डशिप इसमें ये है कि इसके जो मार्क्स है लॉर्डशिप 45% का, और वो जीडी उसके लिए सर क्वालिफाई था. हाँ, हाँ. इनका वो परसेंटेज कम बता रहे हैं, इनका ऐसा कहना है. Yes. is my lordship. The अग्निवीर वाला मैटर. Lordship. Yes. he is not coming under the category of the criteria, my lord. What is the criteria? The criteria is, lordship, the candidate should contain at least 45% marks in the class 10th. वो तो उन्होंने बताया ना 45. My lord, तो है. as per the Board of Secondary Education, the candidate has not taken the compulsory subjects in the calculation. कहाँ? Where is the advertisement which mandates this? My lord, these are the circular of नहीं, where is that advertisement? क्यों उसमें आपने कहीं लगाया एडवर्टाइजमेंट? लॉर्डशिप इसमें मैंने मार्कशीट लगाई और उसमें इनका एक पैरा फर्स्ट इसमें लॉर्डशिप के 45% होना चाहिए. अब नहीं, आउट ऑफ 500 एक मिनट रुको. Where is that advertisement? my lord, the advertisement. पेज नंबर 9 लॉर्डशिप एनेक्सर P1 P1. लॉर्डशिप. अब मैडम P1 से बताइए कि कहाँ है? Which is that condition which you My lord. are reading now? My lord, if you let's see the education qualification, the class 10, कहाँ पर? अग्निवीर. अग्निवीर हाँ. लॉर्डशिप. Agnivir A, हाँ हाँ हाँ. class 10, public metric pass with हाँ. 45 marks in aggregated of 5 अग्निवीर basic टेक्निकल subjects. पढ़ रहा है ना कि अग्निवीर जनरल? लॉर्डशिप अग्निवीर जनरल वाली लॉर्डशिप. क्लास 10th ऑब्लिक Oblique मैट्रिक पास. matrix pass with 45% in the aggregated of 5 basic subjects and minimum 33 marks in each of those 5 subjects for board following grading systems, grades. नहीं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट लिखा है आपने? लॉर्डशिप इसमें 45% in aggregate of 5 basic subjects. Basic What are the 5 basic सब्जेक्ट है लॉर्डशिप, 5 सब्जेक्ट. And let me अरे complete. एक बताने दो ना. लो. हाँ. What are the basic 5 In subjects? basic subjects, these 3 subjects are the compulsory subjects as per the guideline of the Tenth board में तो CBSE. मैम 10th बोर्ड में तो subjects are even common in all these schools. Malad, 3 are the basic subjects of the language. हाँ. And these, if your lordship see, 3 कोई भी subject language के ले सकते हैं and 3 subjects are the mandatory subjects which are the compulsory ये कहाँ subjects. लिखा आपके एडवर्टाइजमेंट Malad, में? in the advertisement we have mentioned the basic subjects. नहीं, बेसिक सब्जेक्ट एक कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा what is your basic subject and been defined in anywhere in your But it is not advertisement. mentioned any subject also, my lord. नहीं, It- इसमें- during the filing of their 33% marks in each of those 5 subjects. Those 5 subjects. Those means you have defined those 5 subjects. Malad, but as per the guideline of this MP board also, they are the 3 mandatory subjects, the compulsory इसमें subjects. कहाँ which ये are- क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है ये? इसमें मतलब if you see the compulsory subjects are 3, which is maths, mathematics, science and social science. These are the 3 compulsory subjects. तो इसमें आपको ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए? इसके कंपलसरी में अगर हम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके एन प्लस 2 लैंग्वेजेस एनी ऑफ. ये कहाँ लिखा आपने? ये चीज बताइए ना. अग्निवीर जनरल में आपने लिखा है 45% in aggregate of 5 basic subjects मेलो and minimum 33% in each of those 5 subjects. मतलब क्या हुआ? ये 5 basic 5 subjects होने चाहिए, मेलो 45% aggregate होना चाहिए and each subject should not be less than 33% minimum. मेलो. तो अब इसमें से मेरे को 5 बता दीजिए कौन से बेसिक सब्जेक्ट है which has been defined in your advertisement or in your recruitment rules. But as per ऐसा the नहीं- notification of these ये MP board से थोड़ी. This is not a selection by the MP board. Yes. This is selection of Agniveer done by the army. मेलो. है ना. तो you will have to go through the army rules. क्या है? These are the compulsory subjects which is to be taken. तो कहाँ है बताइए ना. कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट है बताइए. And second submission ये is कंपल्सरी सब्जेक्ट मींस उसमें 5 सब्जेक्ट बोला है बेसिक. Yes.
ये बता दीजिए व्हाट आर दोस बेसिक सब्जेक्ट्स। This particular अगर आप मान लो ये 10th बोर्ड के किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहती हो अग्निवीर में, Madam. व्हाट आर द 5 बेसिक सब्जेक्ट्स व्हिच यू कंसीडर इट फॉर 45% होना चाहिए? Let- व्हाट आर द, कहाँ लिखा है बेसिक सब्जेक्ट्स? इसमें कहीं है? ये जो आपने दिया है इसमें तो कंपल्सरी सब्जेक्ट दिया है, बेसिक कहाँ है? In these basic subjects, these 3 compulsory subjects will be counted. अरे बेसिक सब्जेक्ट क्या होते हैं? This has not been elaborated. Yes, in the then you will advertisement. have to take that person And Madam, is having during- 45%। आपके during- कितने? Madam, one more. एक मिनट, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 लॉर्डशिप उसमें कौन कौन से हैं? 45%। 5, एक मिनट बताइए। लॉर्डशिप इसमें नेक्स्ट मैंने मार्कशीट फाइल की है। अरे आप बताइए पेज subject- नंबर Submission I would like to एक submit. मिनट जाना, आपके कौन कौन सब्जेक्ट है? 5 कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? पूरे कंप्लीट है लॉर्डशिप और वैसे 33 अरे आपसे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं आप। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स और साइंस, इसमें सभी में हिंदी, कंप्लीट एक मिनट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स, साइंस, जी, इनको कंप्लीट टोटल करके ये 5 होते हैं, है ना? लॉर्डशिप। ये 5 होते हैं। जी, तो इस 5 में से आपका हर एक पांचों सब्जेक्ट 45 आ रहा है लॉर्डशिप। इनका एग्रीगेट भी अगर देखा जाए 45 मैं आप जो पूछ रहा हूँ या तो फिर तुम लिखवा लो यहाँ के, लॉर्डशिप, सॉरी हैं? जी। यू एक्ट टू स्मार्ट। जब आपसे पूछ रहे हैं कि ये पूरे सब्जेक्ट मिला के 45% है क्या? लॉर्डशिप ठीक है। अब इनका कहना है कि ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट में अबाउ 33 होना चाहिए, नॉट बिलो 33। तो आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में जो 33% मार्क्स लॉर्डशिप है ना? यस। तो अब बताइए मैम इसमें क्या क्या Sir, करा रही है? इसमें जो we have taken a social science which is a compulsory subject. हम्म। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं especially ये सोशल साइंस था कि इनके इसमें ये social science is there, my lord. If your lordship will नहीं, see, आपके उसमें मार्कशीट में देखना सोशल साइंस है क्या? लॉर्डशिप है, सोशल साइंस तो है है। लॉर्डशिप, पर उसमें 3 है. एक मिनट रुको, तो उसको क्यों नहीं पढ़ा फिर आपने? लॉर्डशिप इसमें 5 बेसिक सब्जेक्ट इन्होंने ये करा और बेसिक सब्जेक्ट में मतलब कैसे अच्छा ये इनका ये Basic एग्रीगेट subject- 45 पांच सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट कहीं डिफाइंड है क्या? नो लॉर्डशिप तो फिर आपको पांच जो मैंने सब्जेक्ट पूछा कि बोला आपके है कि कौन कौन से 45 होना सब्जेक्ट है, तो चाहिए। आपने ये क्यों छोड़ा सोशल साइंस? नहीं सर, लॉर्डशिप अगर सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट है अगर वो करे तो 33% तो फिर भी मेरा हो रहा है। एक मिनट रुकना, आपके इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है क्या 10th? नो लॉर्डशिप, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, लॉर्डशिप ठीक है ना? अब आपका ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जितने हैं उसमें सब 33% है, लॉर्डशिप वो है, लॉर्डशिप सभी में है पूरा। ठीक है ना? सर, इसमें ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म इनका एक फॉर्म होता है जिसमें वी यूज टू मेंशन कि फिल अप द एवरी सब्जेक्ट्स. तो उस एवरी सब्जेक्ट में भी इन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स मेंशन करे. जो 6 था सोशल साइंस का, उन्होंने उसके मार्क्स ही फिल अप नहीं किए. दिस इज द फॉर्म. आई विल फाइल द डिटेल रिप्लाई. दिखाइए दिखाइए, तो कंसिडर करिए ना, ही इज एलिजिबल फॉर दैट नाउ। मतलब इसमें इन्होंने अदरवाइज ही हैव बीन डिवाइड अर्लियर आपको ओनली. मार्कशीट सबमिट किया था इन्होंने, मार्कशीट सबमिट. फिर आपको नहीं देखना चाहिए There are two बच्चे ने phases. छोड़ दिया एक को। मतलब देयर आर 2 No. phases. ये फर्स्ट क्या है? phase, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मतलब दिस इज द फॉर्म्स फिल अप बाय द कैंडिडेट हाँ। जिसमें उसने सिर्फ उसके 5 सब्जेक्ट्स का मेंशन तो किया. आपको रिजेक्शन में ये लिखना था कि यू मतलब इसमें जो छठवां सब्जेक्ट कहाँ है, गोल है आपके पास है नहीं? मतलब दैट इज व्हाट आई एम सबमिटिंग. देयर आर 2 phases. हाँ। फर्स्ट जो होता है कंप्यूटर एग्जाम, एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वो होता है. क्लियरिंग दैट एंट्रेंस एग्जाम द कैंडिडेट यूज्ड टू अपीयर इन द सेकंड फेज. तो जो फर्स्ट क्लियरिंग एग्जाम होता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर? इट इज अ ऑनलाइन फॉर्म. हाँ। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है. हाँ, उसमें क्या देखा जाता है? एलिजिबिलिटी तो देखते होगे ना? मतलब इट इज अ कंप्यूटराइज. उसके बाद में जब Right. स्क्रीनिंग होती है, ये एट द बड़ी टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ, तब द कैंडिडेट केम आपने स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि ही वाज हैविंग द 6 सब्जेक्ट आल्सो? No, my lord. In the when the document verification was made, हाँ, at that time it was pointed out that the candidate is not coming into the category. Therefore, he has been भाई व्हाट इज द, आपने लिखा कि ही इज नॉट हैविंग 45% मार्क्स। 45%. तो जब उसके मार्कशीट में ऑलरेडी छठवां सब्जेक्ट है, इट इज नॉट बीन एडेड सब्सिक्वेंटली, यू कुड हैव टेकन इनटू But कंसिडरेशन। social science is the compulsory subject which is to be taken. तो उसमें तो उन्होंने किया है ना, ही हैज पास द एग्जामिनेशन, इट इज नॉट द केस दैट ही If इज you are नॉट पास। calculating the, if So you it are, is your mistake then. It is your mistake. Why didn't you take into consideration the 6 subject which is there in the mark sheet? well, we are taking 5 subjects. अरे, Well, kindly consider. We are आपका मतलब है कि आप सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट लेते हैं? कहाँ लिखा है ऐसा? in our सब्जेक्ट advertised. वाइज नहीं तो लिखा। उसमें लिखा है अच्छा चलो 5 भी लेते हैं तब भी तो उसका 33% ईच सब्जेक्ट Each ऊपर subject है। में 33% हाँ, आ रहा है, agreed. हाँ। But
टोटल जो कैलकुलेशन होता है, इफ विल टेक अ सोशल साइंस एज विच इज अ कंपलसरी तो सब्जेक्ट, है ना इसमें सोशल साइंस। पर सोशल साइंस को अगर हम कैलकुलेट करते हाँ। हैं तो द एग्रीगेट इज नॉट 45%, मतलब इट्स 43%. कैसे? द कैंडिडेट इज नॉट लॉर्डशिप इनका एक कैसे बताइए ना। as in Sanskrit, he has taken a Sanskrit in their language. तो संस्कृत में उसने 44 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, और सोशल साइंस में द कैंडिडेट्स आर ऑब्टेन 35 मार्क्स. और अगर हम इन नहीं, एक मिनट रुकना। हिंदी में 40 है, हिंदी में 40 है, इंग्लिश में इंग्लिश में 45 है, 43, 40 कितना है? 45, 45। 45 लॉर्डशिप। संस्कृत में 40, हाँ मैथ्स में 40, हाँ साइंस में 60, हाँ, सोशल साइंस में 35. 35। ये सब. अच्छा, सो मैथमेटिक्स, साइंस तो एंड सोशल सोशल साइंस में आपका 33 के नीचे तो है। नहीं 35 है लॉर्डशिप, तो अरे 30 एग्रीगेट करोगे तो कितना आएगा? लॉर्डशिप पर ये 43%. टोटल सब्जेक्टों का नहीं करना है, सिर्फ हाँ। 5 सब्जेक्ट इज 45 और 6 सब्जेक्ट इज 33 नहीं, अबो। तो बेसिक सब्जेक्ट में सोशल साइंस भी तो आएगा। लॉर्डशिप बेसिक है, इसमें तो वैसे भी साइंस को मानते हैं, सोशल साइंस है, इन्होंने ऐसे क्लियर इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है अरे कि फिर सोशल साइंस। नहीं, वी विल नॉट गो इनटू दैट But- मेरिट्स। अगर इस आपका एग्रीगेट जो है इट इज नॉट 45, देन यू आर लॉर्डशिप अगर पूरे सब्जेक्टों का अगर देखा तो 45 में भी कह रहा हूँ, बट लॉर्डशिप अगर इन्होंने 5 उन्होंने सब्जेक्ट लिखा था कि एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट। लॉर्डशिप, तो बेसिक सब्जेक्ट में subject ऐसा आपने कुछ क्या-क्या क्लियर किया? नहीं लिखा लॉर्डशिप एक की मिनट। ये होने चाहिए। अरे होता भी तो आप बताइए क्या क्या आपका 5? मतलब 3 are the compulsory subjects as per the guideline of MP board only: mathematics, science and social science. साइंस, सोशल साइंस, ये 3 हुए हैं। 3 5 चाहिए ना आपको? 5 चाहिए. उसके बाद में एनी 2 सब्जेक्ट्स बाय देयर चॉइस ऑल्सो अगर हम लेते हैं तो भी द कैंडिडेट. नहीं लेते नहीं है आप, क्या लेते हैं ये बताइए। मतलब वी हैव टेकन हिंदी एंड इंग्लिश. हैं? हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी एंड इंग्लिश, ये सबके सभी कैंडिडेट्स का आपने यही किया है क्या? Yes, a lot of these 3 basic subjects are नहीं, ऑल द कैंडिडेट्स हैव बीन स्क्रूटनाइज्ड ऑन दिस on यार्डस्टिक, these subjects only. हाँ? Yes, a lot. ओनली ऑन दिस। Yes, a lot. ठीक है, फाइल पास ऑर्डर्स, ठीक है। लॉर्डशिप अगर ये क्लियर रहता तो मैं अगर इसकी जगह दूसरी कैटेगरी में भर देता। अरे ये होता है कि आपका जो कैटेगरी होगा, जो उनका यार्डस्टिक बना है, इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि कैसे उसको मार्किंग दी है। बट लॉर्डशिप ऐसा इसमें क्लियर है ही नहीं। तो मैं क्लियर कर दूंगा लॉर्डशिप और वैसे क्लियर वो ब्लेज क्या करें, इसको हेड एंड रिजर्व कर रहे हैं इसमें मैडम। और यू हैव फाइल्ड एनी रिप्लाई और जस्ट यू हैव प्लेस्ड दिस पेपर ऑन रिकॉर्ड? I would like to file reply, but today only your lordship has directed me to seek instruction. No, this is not the. Malad, If I have to write an order, I will not consider this. Malad, I paper. filed a detailed reply. हाँ. 3 days time may be granted. Yes, इसमें कर देना, इसको ओपनिंग डेज में ले लेते हैं। इसमें कर देना कि सुहेंसो को क्या नाम है, आर के पंडा लॉर्डशिप। हाँ, इनका नाम लिख दीजिए एंड इनका मैडम का नाम लिख दीजिए फॉर द रिस्पोंडेंट। व्हाट्स योर नेम मैम? Megha Jain. Megha Jain for the petition for the respondent. The case was listed today for seeking instructions from the respondents. It is the contention of the counsel for the respondent that the petitioner his candidature has been rejected by the respondents rightly, as he has not qualified 45% marks in 5 basic subjects. And according to the counsel for the respondent, the 5 basic subjects are math, science, social science, Hindi and English. Yes, sir. है ना? Let the said contention be filed by the respondents by filing a specific affidavit to the effect that this yardstick has been adopted in all the cases of the candidates who have participated for the post of Agniveer General Duty.